দেখি হৃদয়কে নম্র করি। আজকে এখন আমরা উপবাস রক্ষার মাধ্যমে আছি। আজকে আমাদের খুব প্রয়োজন এটা আজকের জীবনকে ঠিক করা। হয়তো এমন অনেক সময় গেছে, আগে যেমন আমরা বউকে ভালোবাসতাম, এখন আমরা সেরকম ভালোবাসা বউকে দিতে পারি না। আগে যেমন প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতাম, হয়তো তেমন প্রার্থনা এখন করতে পারি না। আসলে আজ আমরা প্রার্থনা থাকবো। আমাদের শরীর হয়তো কমজোর, সরকার করতে পারবে, কিন্তু আমাদের আত্মাকে কমজোর করতে পারবে না, কারণ আমাদের হৃদয়ের কাছে প্রভু যিশু আছে। আর যদি কোথাও আমরা প্রভু থেকে দূরে চলে গেছি, আজকে আবার আমরা প্রভুর কাছে ফিরে আসি। আজকে আমরা আমার প্রভুকে বলি, প্রভু তুমি আমার হৃদয়ে আসো প্রভু। কারণ আত্মিক জীবন তখনই স্ট্রং হবে যখন আমাদের অন্তরে আমরা যিশুকে জীবিত রাখবো। যে যখন আমরা তার কাছে সুসমাচার করতে যাই, প্রভু যিশু মুক্তি নিয়ে যায়, কিন্তু উনি আমাদের অন্তরে জীবিত আছে। আমরা যখন তার সঙ্গে কথা বলি, আমাদের কথা শুনে বুঝতে পারে প্রভুর লোক, আমাদের চরিত্র দেখে বুঝতে পারে প্রভুর লোক। কেন যেদিন আমরা ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছি, সেটা প্রভু যিশুর চরিত্র আমাদের চরিত্র হয়ে গেছে।
পেয়েছি প্রভু। প্রভু তুমি আরেকবার সুযোগ দাও প্রভু আমাকে প্রভু। আমি হারিয়ে যাচ্ছি প্রভু তোমার থেকে প্রভু। আমি শুধু ক্ষমা চাই প্রভু। আমি আগের মতো তোমার ভালোবাসতে চাই প্রভু। প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু। প্রভু তুমি ফিরে আসো প্রভু। তুমি আরেকবার সুযোগ দাও প্রভু। আমি শুধু একবার তুমি দেখতে চাই প্রভু। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই প্রভু। তোমার নাম শুনতে চাই প্রভু। তুমি দয়া করো প্রভু। আজ আমরা আমাদের সেই পূর্ণ প্রেমকে ভুলিয়ে আনতে চাই প্রভুর প্রতি। আমরা মনে করি আমাদের সেই পুরো দিনের কথা, যখন আমরা অন্ধকারে ছিলাম, যখন এই জগৎ আমাদেরকে পরিচয় দিতে লজ্জা পেত, যখন এই জগৎ বলতো তোমরা কোনো কাজের না, যখন এই জগৎ বলতো তুমি চলে যাও। আমরা সেদিনের কথা মনে করি, সেদিনে একটা হাতে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিনে একজন বলছিল যে আমি তো আছি, তুমি আমার সন্তান, আমি তো আছি, তুমি কেন ভয় করছো? আরে আমি তো আছি যে তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেবো। এই জগৎ তোমার ছেড়ে দিতে পারে,
কিন্তু প্রভু যদি বলতে মানুষ হয়ে যাক, মানুষ হয়ে যেত। কিন্তু প্রভু মানুষকে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। হালেলুয়া। আর সেই মানুষের পাপকে বহন করার জন্য, সেই মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি নিজেকে ক্রুশে দিয়েছিলেন। আমরা হয়তো অনেক সময় আমাদের প্রার্থনার উত্তর পাই না। আমরা হয়তো ভাবি যে প্রভু যিশু আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রভু যিশু আমাদেরকে কখনো ছাড়েন না, আমরাই প্রভু থেকে দূরে চলে যাই। কারণ প্রভু যিশুকে আমরা যে জায়গায় ছেড়ে আসি, সেই জায়গা থেকে আজকে প্রভু ডাকছেন, তুমি ফিরে আসো, আমি তোমার জন্য আছি, আমি তোমার সন্তান দেব। হালেলুয়া। এমন ভালোবাসা আমাদের পরিবারে কেউ দিতে পারবে না যা যিশু আমাদের দিয়েছেন। আমাদের জন্য কেউ নিজেকে ক্রুশে দিতে পারবেন না, কিন্তু প্রভু আমাদের জন্য নিজেকে ক্রুশে দিয়েছেন। আজ তাকে ছাড়া আমাদের জীবন শূন্য। আমার জীবনে যে সবাই চলে যায় আমরা বাঁচতে পারবো, কিন্তু প্রভু যিশু যদি আমাদের দিকে চলে যায় আমরা বাঁচতে পারবো না। আজকে আপনি হাত তুলে হোক, চোখের জল হোক, আমার প্রভুকে ডাকুন। প্রভু তুমি আমার হৃদয়ে আবার ফিরে আসো প্রভু, আমি তোমায় ডাকছি প্রভু। আমি বিশ্বাস করি আজ প্রভুর অদ্ভুত উপস্থিতি আছে। আপনি ঈশ্বরকে ডাকুন। আজ আমার ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে ফিরে আসতে চাইছেন। আপনি ঈশ্বরকে ডাকুন, আমার ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে আসবে। আজকে আমাদের সময় যখন আমরা আপনার আত্মিক জীবনকে স্মরণ করবো। ইয়েশুয়া देखना चाहते हैं, if we want to see anyone in our life, we want to see Jesus. Amen. आइए मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, आदि पुस्तक, चैप्टर 6, verse 5 and 6. आदि पुस्तक 6, verse 5 and 6. आप में से कितने लोग हैं जो कभी कोई चीज करने के बाद रिग्रेट किए होंगे, पछताए होंगे? हम सब कभी न कभी हमने रिग्रेट किया, पछताया है हमने, अरे क्यों मैंने ऐसे किया उसके लिए। वो कब, अगर आप कभी किसी के लिए भला करते हैं और भला करने के बाद जब वहां से आपके जीवन में बुरा कुछ आता है तो यू रिग्रेट, आप पछताते हो, क्या मुझे आगे लोगों को बोला, क्यों मैंने ऐसा किया। जिस तरह आज आपको फीलिंग्स होता है कुछ अच्छा करने के बाद जब आपके जीवन में कुछ बुरा आता है, उसी तरह यहाँ पर खुदा भी रिग्रेट कर रहा है। आमीन। खुदा भी पछता रहा है। खुदा इसलिए नहीं पछता रहा है कि उसने किसी को चॉकलेट दिया हो। खुदा इसलिए नहीं पछता रहा है कि किसी को उसने कुछ पैसे दिए हो। खुदा इसलिए रिग्रेट नहीं कर रहा था कि किसी
किसी को उसने कोई बाइक या कार दे दिया हो, परंतु खुदा यहाँ पर रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है मनुष्य को बनाने के बाद। आमेन। यानी हम सब की सृष्टि करने के बाद खुदा रिग्रेट कर रहा है, खुदा पछता रहा है। बाइबल बताती है और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई है, बढ़ गई है। आमेन। मनुष्य की बुराई पृथ्वी में क्या हो गई है, बढ़ गई है। हालेलुया। परंतु याद रखना, खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी महिमा को बढ़ाएं। परंतु बाइबल क्या बोलती है कि परमेश्वर स्वयं बोलता है कि मनुष्य की बुराई इस धरती पे क्या हो गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, आमेन, उनके मन के विचार में, मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, निरंतर क्या होता है, वो बुराई होता है। आमेन। इंसान के दिमाग में जो भी कुछ हो रहा है अभी सब बुराई हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ भी आप सोच रहे हो, बुराई सोच रहे हो। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसके बारे में बुराई सोच रहे हो। कोई अगर आपके बारे में अच्छा भी सोच रहा है तो भी आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो। आप सोच रहे हो क्या बात है, जानना पहचान, ये हमारा मेहमान कैसे बन रहा है, क्या बात है। देखिए कुछ हम ऐसा कहते हैं, देखिए अगर करना तो कोई बात नहीं है, देखिए करने के लिए पूछने की जरूरत क्या है। पर दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि क्या बात है, इतना उपकार मेरे ऊपर क्यों कर रहा है। जरूर कोई इसके पीछे कारण होगा, क्योंकि हमारे विचार सिर्फ क्या पैदा कर रहे हैं, बुरा ही पैदा कर रहे हैं। अगर कोई हमारे लिए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, कर तो देगा, पर तो बाद में सोचता है क्यों कर रहा है, किसी ना किसी बोल गए तुम आज के बोल गए ना, किसी दिन पहले तुम्हारे बोल गए, कुछ ना कुछ तुम्हें वो बोलेगा। बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान के अंदर सिर्फ बुरा ही पैदा हो रहा है। आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें बताओ, बच्चे बोलेंगे मम्मी पापा बुरे हैं। आमेन। क्यों बुरे हैं? क्योंकि आप अपने बच्चों को रोक रहे हो बुराई करने से। आप अच्छा कर रहे हो, परंतु बच्चे क्या बोल रहे हैं, मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं। क्योंकि हमारे अंदर बुरा ही पैदाइश हो रही है, हमारे खेती में जो कल्टीवेट हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है। आमेन। हालेलुया। और 6 लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। आमेन। यहोवा परमेश्वर, उत्पत्ति की पुस्तक याद कीजिए, वहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने इमेज में, अपने जैसा मैं इंसान की सृष्टि करूंगा। और प्रभु ने अपने जैसा हमें बनाया। He made mankind in his own image. उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की अपने जैसा दिखता है जैसा। आमेन। बहुत प्यार से बनाया, बहुत अच्छी तरह से बनाया, बहुत सुंदर बनाया परमेश्वर ने। परंतु बाइबल क्या बताती है, वो क्या करने लगा, वो पछताने लगा। वो सूर्य बनाकर कभी नहीं पछताया, वो चांद बनाकर कभी नहीं पछताया, वो समुद्र बनाकर कभी नहीं पछताया, वो तारों को बनाकर कभी नहीं पछताया, वो पेड़ पौधों को बनाकर कभी नहीं पछताया, परंतु इंसान को बनाने के बाद खुदा पछताता है। आमेन। जिसको खुदा ने बोलकर नहीं बनाया, जिसको खुदा ने रच कर बनाया। आमेन। हालेलुया। Bible says he said, उसने कहा और हो गया। परंतु परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया। आमेन। हालेलुया। इसलिए प्रभु को ज्यादा दुख हुआ, इसलिए परमेश्वर को ज्यादा दुख हुआ। परमेश्वर ने जिसके लिए आपको नया जीवन दिया है, पाप
से निकाला है। और जब आज प्रभु आपके जीवन में अच्छी चीजें नहीं देखता है तो प्रभु को दुख होता है, प्रभु को तकलीफ होती है। एक समय आप अंधकार में थे, कष्ट में थे, प्रभु ने आपको वहां से निकाला है मेरे प्रियो। और जब आज जिसके कारण प्रभु ने आपके लिए सब कुछ किया, आप भूल गए, आप भूल गए, आप सब कुछ भूल गए। बाइबल बताती है वो मन में आती क्या हो गया। तब यहोवा ने सोचा, 7, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। कोई बड़े बदला नहीं। मनुष्य के कारण परमेश्वर क्या बोलता है, अब मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। आमीन। पंछी कोई गलती नहीं किया था, पेड़ पौधों ने कोई गलत नहीं किया था, परंतु इंसान के कारण खुदा क्या बोलता है, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। कई बार माँ बाप का बुरा भी बच्चों के ऊपर आता है। कई बार माँ बाप अपने जीवन में इतना पाप करते हैं, कई बार माँ बाप के भी पाप का बोझ बच्चों के जीवन में आता है। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है पाप कभी किसी को नहीं छोड़ता है। अगर आपने पाप किया है, if you have committed sin, somewhere your children are also suffering, क्योंकि आपने श्राप को अपने घर में बुलाया है, आपने कर्स को अपने घर में बुलाया है। और बाइबल बताते हैं because of mankind the creation also was suffering। मनुष्य के कारण पूरी सृष्टि परमेश्वर तबाह करने के बारे में सोच रहा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो सबको तबाह करने के लिए सोच रहा है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। परमेश्वर नाराज हो गया, परमेश्वर सबको बर्बाद करने के लिए तैयार है, पर उसका अनुग्रह एक जन के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। बहुत बार हम जब गुस्सा करते हैं तो हम किसी के ऊपर दया नहीं कर पाते हैं, परंतु परमेश्वर गुस्सा करने के बाद भी धर्मी के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखता है। आमीन, हालेलुया। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम सब के ऊपर गुस्सा करना स्टार्ट करते हैं, हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजों को, परंतु परमेश्वर, देखिए परमेश्वर के गुस्से को भी, परमेश्वर के नाराजगी को भी नूह ने अनुग्रह में बदल कर रखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत नाराज हुआ, परमेश्वर नाराज हुआ, परंतु परमेश्वर के नाराजगी में भी नूह ने अपने अच्छाई के लिए, अपने धार्मिकता के लिए परमेश्वर के दिल में अनुग्रह को पैदा करके रखा। That's the character of the man of God। आमीन। ये परमेश्वर के लोगों का चरित्र है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि सबके ऊपर है, परमेश्वर सबको देख रहा है। आमीन। और परमेश्वर ने जब नूह को देखा, उसकी दृष्टि कोई पढ़ देंगे वर्स 9 बताती है Noah was a godly man। Amen। The name Noah comes from the Hebrew word Noah। The real name comes from Noah, which means rest, a repose। विश्राम करने वाला व्यक्ति, शांत रहने वाला व्यक्ति, रिपोज जिसको हम कहते हैं शांत, क्वाइट। और हिब्रू वर्ड अगर इसको रूट में हम जाएं, इसके जड़ में जाएं, तो उसका और एक नाम आता है नाहूम, which means to comfort, एक दूसरे को सांत्वना देना। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका चरित्र भी पाया जाता है। आमीन, हालेलुया। बहुत लोगों का नाम है जॉन पर पी के डॉन, बहुत लोगों का नाम है पीटर पर पी के फ्लाट। ठीक है, मतलब नाम जैसा है वैसा
नाम नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों का नाम है शांति, पर घर में अशांति है ना। बहुत, और नाम तो बहुत अच्छे हैं, नाम माँ बाप बहुत चुन कर रखते हैं। बाबा मेरा छोटा कितना सुंदर था, कैसे खेल रहा है, कैसे हाथ कर रहा है, छोटे में बहुत अच्छा लगता है। पर तो जब बड़ा होता है तो हम लोग बोलते हैं तुम नमक खिला के मार देने से अच्छा, पैदा होने से पहले तुमको मार देना चाहिए। ये वही माँ बाप है जो माँ बाप पैदा होने के बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाकर जश्न मनाते हैं, और ये वही माँ बाप है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं और बोलते हैं क्या मुझे तो नाम ये रुकुम लिखे, क्यों मैंने तुम्हारा नाम ऐसे रखा। परंतु बाइबल बताती है नूह का नाम बहुत ही अद्भुत नाम है, आमेन। और आपको पता है नूह के जीवन में ये कब आ रहा है? When he was more than 600 years, जब वो 600 साल से भी ज्यादा जीवित है, आमेन, हालेलुया। और इसी दरमियान परमेश्वर ने इंसान के एज को बांध दिया था, 120 कर दिया था। परंतु बाइबल बताती है Noah was a godly man, आमेन। बाइबल में सिर्फ दो व्यक्ति के बारे में बताया गया who walked with God, जो परमेश्वर के संग चला, एक हनोक और दूसरा नूह, आमेन। What a privilege this men of God had. They walked with God. वे परमेश्वर के संग चलते थे, हालेलुया, हालेलुया। What a privilege they received. वे परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, आमेन। वो इसमें लिखा है नूह की वंशवाली ये है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, आमेन। नूह परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर, आमेन। नूह संसार के लोगों के संग नहीं चला, परंतु परमेश्वर के साथ चला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I do not know, मैं नहीं जानता कितने लोगों के अंदर ये बात ऐसा आती है कि हमें परमेश्वर के संग चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। बाइबल में पतरस प्रभु यीशु के संग चलना तो चाहता था, तो डूब जा रहा था, आमेन। फिर खुदा प्रभु यीशु ने उसकी मदद की। आज हम चल नहीं सकते, परंतु हमें खुदा की मदद की जरूरत है, आमेन, हालेलुया। But let's focus here. Noah was a godly man, amen. 10 में लिखा है, वर्ष 10 में लिखा है, और नूह से सेम, हाम और यपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए, आमेन। बहुत लोग कहते हैं कैसे प्रभु में चले, मेरा परिवार है, मेरा फैमिली है, আমি আমার পরিবারকে দেখবো না যিশুকে দেখবো, আমেন। আমি কাকে দেখবো? He was a family man, amen, হালেলুয়া। আমার বর আছে, আমার ছেলে আছে, আমার এই আছে, আমার হাজবেন্ড আছে, আমার এই আছে, আমার ওই আছে, এই সবকে দেখতে দেখতে আমি যিশুকেই ভুলে যাই অনেকবার, amen। But remember क्यों इधर ये वचन डाला गया? ताकि परमेश्वर हमें बता रहा है कि परिवार होने के बाद भी हम परमेश्वर के संग चल सकते हैं। फैमिली होने के बाद भी हम, परिवार रहने के बाद भी हम परमेश्वर के प्रति रिस्पांसिबल हो सकते हैं, आमेन, हालेलुया। Don't give excuses, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि नूह के समय इतना पाप, इतना गुनाह, इतना पाप हो रहा था कि आसपास रहने के लायक नहीं था लोग। आज आपके पास चर्च है, आप चर्च में आकर प्रभु की आराधना कर सकते हो, परंतु नूह के घर के आसपास ही गुनाह पाप सब हो रहा था। और बाइबल सेज Noah was a family
मैन। आइए हम और आगे जाते हैं, उसका 11 और 12 हम पढ़ेंगे। कोई बड़े जल्दी से ही भाषा मैन। और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो गई थी? बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी में जो दृष्टि की तो क्या देखा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप कितने लोगों का आंख खुला है? कुछ लोगों का बंद भी खुल गया, एकदम राइट वचन खुला है। आप बोले कितने लोगों का आंख खुला है? सबका आंख खुला है? देखना का आंख छोटा है, आंख बड़ा है, आंख ऊपर तक दिख नहीं रहा है। हाँ, सबको मैं देख पा रहा हूँ। सुजीत पाल का हाथ ही नहीं है। सुजीत पाल हाथ तो है। हाँ, सबका हाथ है, सबका हाथ, सबका आंख खुला है। ओके, और हाथ ऊपर। बाइबल बताती है परमेश्वर ने दृष्टि की तो क्या देखा? कुछ देखा। कुछ आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? आप हाथ देख रहे हो ना, मुझे देख रहे हो? आपने दृष्टि की क्या देखा? पास्टर जी खड़े हैं, मैं बैठा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं क्या हूं? मैं खड़ा हूं। आप मुझे क्या देख रहे हो? खड़े, मैं खड़ा व्यक्ति हूं, ये सामने एक पुलपिट है, और क्या दिख रहा है? रोशन नहीं दिख रहा है? ये रोनोजीत दिख रहा है? आपके आंख क्या है? रोनोजीत का पापा का हाथ दर्द हो गया, देखो हाथ क्या है। वो बोला है रोनो की देखो, रोज देखो। आमीन, हालेलुया। जब आपने अपनी आंखें खोली और आंख से जब देखा तो आपने मुझे देखा, यहाँ पुलपिट में बहुत सारी चीजें, आपने आसपास लोगों को देखा। परंतु बाइबल क्या बताती है? और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा? प्रभु की आंखें हमारी आंखों से अलग है। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि हमारी दृष्टि से अलग है। जब हम ईश्वर देखते, की देखते, वो देखता है वो बिगड़ी हुई है। आमीन। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली। आमीन। सबने अपनी अपनी चाल को क्या किया? बिगाड़ लिया। सब अपने जैसा चल रहे हैं, सब अपने मन के मालिक हैं, सब अपनी तरह से चाल चल रहे हैं। जब परमेश्वर ने देखा तो ये देखा, आपने देखा मुझे खड़े रहते हुए, परंतु तो आपने मेरे मन को नहीं देखा। आमीन। आपने मेरी सोच को नहीं देखा, आपने मेरी बातों को पहले से नहीं सुना जो आने वाली है। परंतु खुदा जब देखता है तो खुदा मन को देखता है। खुदा हमारे दिल के हर एक धड़कन को सुन सकता है। आमीन। बात बताती है कि जब परमेश्वर ने दृष्टि की तो क्या देखा? इंसान बिगड़ गए हैं, इंसान का चरित्र खत्म हो गया है, इंसान अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। किसी को भी परमेश्वर की परवाह नहीं है। आमीन। किसी को भी परमेश्वर की परवाह नहीं है। कोई परिवार लेकर बिजी है, कोई बेटा लेकर बिजी है, कोई बेटी लेकर बिजी है, कोई शादी करने में बिजी है। ये सारी बातें प्रभु यीशु कहेंगे। मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। इन सारी बातों को प्रभु यीशु स्वयं अपने मुंह से बोलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, but in this scenario, what we see, the Noah was the unique man. सब अपनी इच्छा से चल रहे थे। सोचो, पूरा दुनिया अपनी इच्छा से चल रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति खुदा की इच्छा से चल रहा है। आमीन। क्या वो यूनिक नहीं है? क्या वो अलग नहीं है? क्या वो अनोखा नहीं है?
आमेन, हालेलुया। आप अपने घर में रह के परमेश्वर के अटेंशन को ले सकते हो। आप अपने जगह में रह के भी परमेश्वर के अटेंशन को ले सकते हो। आप किसी भी, आप चाहे बहुत बड़े बंगले में रहते हो, आप बहुत बड़े फ्लैट में रहते हो, आप एक छोटे से झोपड़ी में रहते हो, you are staying in a hut, you can attract God. Amen. Hallelujah. और जो बाइबल बताती है कुछ अद्भुत, आइए मेरे साथ पढ़ें। जब हमने देखा, हम इसको थोड़ा अलग करते हैं। 6 का 11 and 12 में हमने पढ़ा कि he was a unique man, पर तो 22 हम पढ़ेंगे, 6 का 22। परंतु इससे पहले परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परंतु परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी? परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि नूह तो एक जहाज बनाना। Amen. You make an ark for me. Actually, ark, A-R-K-R. ये रियल लैंग्वेज या रियल हिब्रू लैंग्वेज में आर्क का मतलब होता है बॉक्स, B-O-X, बॉक्स। This is not a ship. This is not, ये जहाज जैसा नहीं बना पाया था, परंतु he made and the ark, it was like a box. तो एक बॉक्स जैसा बना ले, एक आर्क बना ले। उस जमाने के लोगों ने कभी भी जहाज नहीं देखा। उस जमाने के लोगों ने कभी भी कोई नौका नहीं देखा। उस जमाने के लोगों ने कभी भी कोई बहुत बड़ा बोट नहीं देखा। परंतु बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने नूह को क्या कहा? क्या बनाने के लिए? एक जहाज बनाने के लिए। Amen. God asked Noah to make an ark, एक जहाज बनाने के लिए। याद रखना, परमेश्वर आपको ऐसी चीजें बोलेगा जो इस संसार में दिखती नहीं है। परमेश्वर आपको ऐसे काम करने बोलेगा जो बाहर आपने कभी नहीं देखा होगा। परमेश्वर आपको ऐसे चीजें करने बोलेगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। परमेश्वर आपको ऐसी चीजें करने बोलेगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। परमेश्वर आपको ऐसी चीजें बोलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप एक ओबीडिएंट चाइल्ड कहलाएंगे, तब आप एक आज्ञाकारी संतान कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात बताती है परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किसने किया? हालेलुया। मैं नहीं जानता कितने लोग यहाँ परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। मैं नहीं जानता कितने लोग आज्ञा मानना चाहते हैं, परंतु बाइबल में लिखा है नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए 2 पीटर, दूसरा पत्रस, उसका 2 का 5 में क्या लिखा है? 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। कोई मेरे लिए पढ़ दे। बाइबल बताती है दूसरा पत्रस 2 पीटर, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा। आमेन। प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा। आमेन। परमेश्वर छोड़ता नहीं है किसको, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजन प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक। आमेन। नूह, कौन? ये कौन बोल रहा है? ये पतरस बोल रहा है। आमेन। ये पतरस बोल रहा है। हजारों साल बाद पतरस अपनी प्रीचिंग में, अपने प्रचार में नूह के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्ति को बचा लिया। आमेन। किसके कारण बचा लिया 8 व्यक्ति? नूह के कारण 8 लोग बच गए।
बाइबल में लिखा है नूह परमेश्वर के संग चलता था। आमीन, हालेलुया। अगर आप सही हैं, आपके बच्चे भी, आपके संतान भी आशीष पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि जिस समय आइए हम यीशु क्या कहते हैं नूह के बारे में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 37। जैसे नूह के दिन में था वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? Who is speaking here? Jesus। प्रभु यीशु बोलते, प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जैसा नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र आना भी, यानी प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में प्रभु यीशु बोल रहे हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर तो आए थे, परंतु अब प्रभु दूसरा आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जल प्रलय, जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, कैन वी हैव द पिक्चर ऑफ आर्क? क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह का जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। आमीन। प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? जब तक बारिश नहीं हुआ, जब तक पानी जहाज को ऊपर तक लेकर नहीं गया, तब तक लोगों के अंदर कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। आज भी कितने लोग हैं, लोग अपने जीवन में मस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपने जीवन में एकदम खोए हुए हैं। कलीसिया चर्च खत्म होने के बाद भी हम फिर भूल जाते हैं कि प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं। याद करें उस समय नूह को किसी ने प्रचार नहीं किया था। याद करें उस समय कोई चर्च नहीं था, परंतु सबसे पहला चर्च या सबसे पहला कलीसिया, ये जो जहाज है हम इसे चर्च कहते हैं, हम इसे कलीसिया कहते हैं। दिस वाज द चर्च। ये बात बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने आएगा, प्रभु अपने चर्च को लेने आएगा, अपने दुल्हन को लेने आएगा। और बाइबल बताती है जो भी इस जहाज में चढ़ा वो नष्ट नहीं हुआ, वो बच गया। जो भी अगर आज आपसे विवाह हो रहा है, आप पाप कर रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो, ये सारे यीशु ने कह दिए। बाइबल में क्या लिखा है? तुम में ऐसे कितने लोग हैं जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने जीवन में व्यस्त है, पैसा सब कुछ है, संपत्ति सब कुछ है, और बाइबल बताती है विवाह शादी होती है। 39 में लिखा है जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी। हालेलुया, हालेलुया। नूह प्रचार कर रहा था, किसी ने विश्वास नहीं किया। आप प्रचार कर रहे हो, आओ जहाज में बैठो, आपको दिखता है आप जहाज में बैठे हो अभी। आमीन, हालेलुया। दिस इज द आर्क ऑफ गॉड। आप एक जहाज में बैठे हो, जो इस जहाज में बना रहेगा वो परमेश्वर के खुदा के पास जाएगा। जो इस जहाज से बाहर निकलेगा वो खुदा के पास नहीं जाएगा। आज हमें महसूस नहीं हो रहा है, आज हमें एकदम पता नहीं चल रहा है। हम अपने दुनिया में मस्त हैं, हम अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, हम अपने जीवन को लेकर व्यस्त हैं, पर हमने खुदा को पीछे छोड़ दिया, हमने यीशु को पीछे छोड़ दिया। আমরা প্রভুকে ভুলে যাচ্ছি। We are lost in this world. This is not me telling. This is Jesus himself is saying. लोग
भूल गए हैं। लोगों को यीशु ने वार्निंग दिया। लोगों के जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा तकलीफ होता है जीवन में, प्रभु झटका देता है हमें, प्रभु हमें थोड़ा सा याद दिलाता है, चढ़ जाना चाहिए था, प्रभु के घर जाना चाहिए, मेरे जहाज में तुझे रहना चाहिए। फिर याद रखना, प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, प्रभु यीशु ने अपने आप को नूह के जहाज से तुलना किया। आमीन। परमेश्वर ने नूह के जहाज से अपने आप को तुलना किया। नोआ आर्क या नोआ आर्क आज मेरा सब्जेक्ट है। नोआ या नोआस आर्क अ पिक्चर ऑफ सैल्वेशन। आमीन। ये नोआ का जो आर्क है, ये जो नोआ का जहाज है, आमीन, इट्स अ पिक्चर ऑफ सैल्वेशन। जो इस नाव में रहेगा, जो इस आर्क में पाया जाएगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का सैल्वेशन होगा, वही अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आज हम व्यस्त हैं अपने जीवन में दूसरों की बुराई करने में, दूसरों के बारे में बोलने में, तो हम भूल गए, हमें याद भी नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि आज लोगों को समझ नहीं आ रहा है लोग क्या कर रहे हैं। What people are doing। लोग अपने दुनिया में व्यस्त हैं, परंतु आज यीशु हमें याद दिला रहा है, याद रखना मेरा आना कैसे होगा। वेरी फेमस स्क्रिप्चर इब्रानियों उसका 11:7, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11:7, हिब्रियों 11:7, बहुत सुंदर वचन है। आप उसको याद कर लेना, अपने घरों में रोज इसको पढ़ना। I love this Bible verse, इब्रानियों 11:7। By faith Noah being warned by God about things not yet seen, in reference prepared an ark for the salvation of his household. Amen. By which he condemned the world and became the heir of righteousness, which is according to faith. So powerful word. विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। आमीन। बहुत सारी चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, परंतु प्रभु करने के लिए बोलेगा। आमीन। प्रभु आपको बोले, हम तो देखते पाछे की करे बोलूं, मैंने तो देखा नहीं है। आमीन। मैंने तो नहीं देखा ऐसा होते हुए, मैंने तो ऐसा होते हुए नहीं देखा है, मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। मेरे जीवन में जब होगा तब मैं कुछ करूंगा। आमीन। परंतु बाइबल बताती है कि विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई, आमीन, जो बात उसने कभी नहीं देखी उसने वो किया। आमीन। अगर आज आप यूनिक व्यक्ति बनना चाहते हो तो जो चीजें आपको दिखती नहीं है वो करके दिखाओ, तब आप परमेश्वर के संग चल सकते हो, तब आप खुदा के साथ चल सकते हो, तब आप परमेश्वर के प्लानिंग को जान सकते हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई कहता है अच्छा उस व्यक्ति ने 10 मार्क्स दिया तभी उसका आशीष हो रहा है, उसके जीवन में बरकत हो रहा है। अच्छा अब मैं भी दूंगा। तो आपने देख के दिया, आपने सुन के दिया, आपने किसी का सुना, आपने किसी के जीवन को देखा, तब आप कर रहे हो। अच्छा पास्टर जी ने ऐसा देखा, बहुत अच्छी बात है। किसी ने यहाँ लोगों को नहीं देखा, मैंने उस कोने से लोगों को देखा। किसी ने देखा नहीं पर मैंने देखा। आमीन। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेशर दिया इस जमीन को छोड़ देने के लिए, पर तो मैंने छोड़ा नहीं। बहुत लोगों ने इस जमीन के जगह दूसरा जमीन देने के लिए हमें मुझे प्रपोजल दिया, पर मैंने नहीं छोड़ा ये। मैंने कहा नहीं, यहीं पर होगा जो होगा। क्योंकि मैंने परमेश्वर ऐसी चीजों को करने के लिए बोलता है जो संसार हमें नहीं दिखाता।
जो संसार हमें नहीं बोलती है। आज हो सकता है आपके बच्चों का फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा होगा, पर तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, प्रभु के वचनों पर चलने की जरूरत है। क्या मिलेगा चर्च में जाके? हमारा कोचिंग है, हम तुम्हारे बच्चों का कोचिंग है। बहुत सारे माँ बाप कलिसिया में चर्च में संडे के दिन नहीं आ पाते, क्योंकि संडे में सब स्पेशल क्लासेस है, सारे स्पेशल क्लासेस ऑन संडे है। संडे कराटे सिखाना है, संडे ड्राइंग सिखाना है, संडे डांस करवाना है, संडे सब कुछ कराना है। फिर वही बच्चा सारा दिन सारा जीवन आपको कराटे से आपको ही मारेगा, वही बच्चा आपको सारा जीवन नचवाएगा, आपको नाचना ही होगा। You have to dance। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, so powerful word, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ, जिसके साथ? भक्ति के साथ अपने घरानों के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? संसार को उसने दोषी ठहरा दिया। He condemned the world। Amen। He condemned the world। बाइबल बताती है, no problem, mic is not working, but I can speak। बाइबल बताती है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घरानों के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उनके द्वारा उसने संसार को क्या कर दिया? आज आप अपने विश्वास के द्वारा, ध्यान से सुने, आज आप अपने विश्वास के द्वारा जो लोग आज आपको पसंद भी नहीं करते हैं, आप उनको कंडेम कर सकते हैं, दोषी बना सकते हैं। आपको किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को छोटा करने की जरूरत नहीं है। You don't have to put down anyone in your life। आपको एक ही चीज करना है, विश्वास के अनुसार चलते रहना। आज बहुत लोग बोल रहे हैं चर्च जाने से क्या मिलेगा, बहुत लोग बोल रहे हैं, उस समय बहुत लोग बोल रहे थे नूह को पागल हो गया, जहाज बना रहा है, कभी बारिश ही नहीं हुआ यहाँ, हमने कभी ऐसा जहाज देखा ही नहीं, क्या कर रहा है? हो सकता है पूरे पाड़े में आप यूनिक हैं, आपने सिर्फ प्रभु को ग्रहण किया है। मैं क्या जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ आपने यीशु को ग्रहण किया है, क्योंकि इस पूरे बिल्डिंग के लोगों ने कभी जहाज नहीं देखा, उस बिल्डिंग के लोगों ने कभी भी बारिश नहीं देखी, उस पूरे पाड़ा के लोगों ने कभी भी जहाज नहीं देखा है, उस पूरे पाड़ा के लोगों ने कभी भी नूह के तरह आज्ञा नहीं पाई है, पर आपने पाया है। बाइबल बताती है नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आमेन। हालेलुया। आप अपने विश्वास के द्वारा, आप अपने परमेश्वर के कार्य के द्वारा, आप परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा you can condemn this world। आप इस संसार को दोषी ठहरा सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसको ब्रेक करें 4 भागों में इस वचन को, पहला हम देखेंगे he believed what God said। Amen। इस वचन को हम 4 भाग में अगर बांटे तो पहला हम देखेंगे कि उसने विश्वास किया जो भी खुदा ने बोला। Amen। आज हम कितने लोग विश्वास ही नहीं करते। मैं कहता हूँ, मैं कई बार वचन में बोलता हूँ आपको, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, प्रभु तुम यदि जाने दुनिया में आशीर्वाद देंगे। जैसे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, मेरा दुख मेरा ही है, मेरा तकलीफ मेरा ही है, मेरा आंसू मेरा ही है, मेरी बीमारी मेरी ही है, और हम अपने आप में रख लेते हैं। परंतु बाइबल बताती है नूह ने विश्वास किया। Amen। He believed what God said। Second, he built an ark to save his family। अगर आज आपको
आपको अपने परिवार को बचाना है, अगर आज आपको अपने संगति, अपने लोगों को बचाना है, अगर आपको परमेश्वर के राह पे चलना है, मेरे प्रियो आज आइए परमेश्वर की आज्ञा को माने, ताकि आपके आज्ञा मानने से आपका पूरा परिवार बच जाएगा। एक जन के विश्वास से पूरा घराना उद्धार पाता है। बनाने के लिए दान दे रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है, आप अपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन Amen. Hallelujah. 600 years. Noah 600 years. Noah 600 साल का था। 600 साल में हाथ ऐसे हो जाते हैं, पैरों में बल नहीं होता है, परंतु उस अवस्था में कोई लकड़ी काटने के लिए जा रहा है और प्रभु ने स्पेसिफिक कहा पेड़ के वृक्ष, जो तो लकड़ी से नहीं बनना है। परमेश्वर अपने घर को स्पेशल बनाना चाहता है, जो तो से नहीं चलेगा। मेरे दूसरे को लोग बहुत चर्च के जो लोग अच्छे पहचानते हैं, जब हम भाड़े के घर में भी थे, मैंने भाड़े का घर को ऐसा सजाया कि मानो वो अपना चर्च है। क्योंकि जो भी आराधना का जगह होगा वो सुंदर होना चाहिए। प्रभु ने एक बूढ़े आदमी को क्या बोला? बोपेर का वृक्ष। बोपेर का वृक्ष यानी जंगल में जाकर बोपेर का वृक्ष खोज खोज के निकालना है। नूह को किसको बोल रहा है? एक बूढ़े व्यक्ति को। किसको बोल रहा है? एक बूढ़े व्यक्ति को। और वो जो आर्क है वो छोटा नहीं था, उसमें लायन ढुकने वाला था, उसमें टाइगर भी ढुकेगा, उसमें एलिफेंट भी ढुकेगा, आमेन, उसमें जिराफ भी ढुकेगा। तो सोचो कितना बड़ा होगा वो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ह्यूज। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। आप बोल रहे हो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप बोल रहे हो आगे जैसा ताकत नहीं है, आगे जैसा उत्साह नहीं है, आगे जैसा ये नहीं है, आगे जैसा वो खुदा नहीं जानता। खुदा ने अभी बोला है, वो अभी जानता है। आपने लिखा है the second he built an ark to save his family. Amen. उसने वो जो आर्क बनाया था वो अपने परिवार को बचा सके। आपके कितने ऐसे बच्चे जो चर्च नहीं आना चाहते हैं, और बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं ठीक है बेटा हम चर्च जाए, तू होमवर्क करके रखना। कोई बात नहीं बेटा तू पढ़ाई करना। बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी मेरा पढ़ाई है, मेरा ये है, मेरा वो है।
और जब रिजल्ट आता तो आप मेरे पास आते, देखो ना सर हमारे पास है तो कौन नंबर क्या होने चाहिए, हमें आगे की पर बोलबो बात ना। अगर वो हाथ में रहेगा तो वो खुदा का बच्चा, अगर वो घर में रहेगा तो वो आपका बच्चा, अगर आप उसको घर में रखोगे अपना संतान, अगर आप उसको चर्च में आने का मौका दोगे वो परमेश्वर का, अगर वो परमेश्वर के घर में है, मुझको बोलो मैं रोऊंगा, मैं घुटने टेकूंगा आपके बच्चे के लिए, मैं खुदा से लड़ूंगा ताकि परमेश्वर आपके बच्चों को एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। Built an ark to save his family. Third, he rejected the corruption of the world. Amen. He rejected the corruption of the world. उसने संसार के हर एक भ्रष्टता को अस्वीकार कर दिया, हर एक लोभ को, हर एक लालच को, हर एक अभिलाषा को, हर तरह के पाप को उसने रिजेक्ट कर दिया। आमेन। चर्च के दिन, रविवार के दिन हम विवाह में जा रहे हैं, उन्हें उसने रिजेक्ट कर दिया। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने स्वयं कहा, तुम में शादियां हो रही हैं, तुम में विवाह हो रहा है, तुम ये आर्क को भूल गए, तुम चर्च को क्यों भूल जा रहे हो? शादी करने प्रभु मना नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर के घर को छोटा करने से प्रभु नाराज हो रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। संडे अगर बर्थडे है, इसका मतलब नहीं कि आप चर्च एब्सेंट करो। आमेन, हालेलुया। मेरे बच्चे का भी बर्थडे संडे पड़ता है, इसका मतलब नहीं कि मैं घर में हूँ और मैं छुट्टी में चला गया अपने बच्चों को लेकर। नो, आमेन, हालेलुया। मैं अपने मेरे जीवन में पॉलिसी है, हमें पेंटिकॉस्टल लोग हैं, पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए डेट कोई मायने नहीं रखता। आमेन। मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ, और मैंने दोनों बच्चों का डिलीवरी बहुत अपने प्लानिंग से करवाया। आप बोलेंगे ये कैसे सर? कहाँ काटना ही होता है, तो करना। तो मैं बोला 1 तारीख को होगा, डॉक्टर बोला 2 तारीख को नहीं, ना 8 तारीख को होता है। तो बोला अच्छा 1 तारीख। फिर दूसरा बेटा उसका 1 तारीख से पहले हो सकता है, मैं बोला नहीं 1 तारीख को ही करो, क्योंकि मेरा साल मेरा 11 तारीख, मेरा बेटा 1-1-11। तो इसका मतलब क्या है? 1 + 1 कितना हुआ? 1 + 1 2। तो 2-4 हम कर ही सकते हैं। अगर 1 तारीख को बेटा जन्मदिन हम लोग 2 तारीख को मना लेंगे, 2-4 हम कर सकते हैं। मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, आपको ये समझ में नहीं आया। कई बार हम लोग 1 तारीख का जन्मदिन 2 तारीख को मनाए, फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों को केक मिलना चाहिए, काटना चाहिए, और कोई गाना चाहिए हैप्पी बर्थडे, दे आर हैप्पी। और बस 2 दिन गिफ्ट दे दो, सब भूल जाते हैं। आमेन। खुदा के घर में आप नहीं आए, खुदा नहीं बोला, ये याद रखना। What Bible says, he rejected the corruption of the world. उसने संसार के हर एक करप्शन को छोड़ दिया, उसने त्याग दिया सबको। आमेन, हालेलुया। कोई समझौता नहीं संसार से, नूह ने कोई समझौता नहीं किया संसार से। He and his family were delivered from destruction. सिर्फ वही नहीं बचा, उसका पूरा परिवार भी बचा। आमेन। सिर्फ वही नहीं बचा, उसके बच्चे भी बचे। सेम, हाम, यापेत और उसकी पत्नी, और सेम और हाम और यापेत उसके 3 पत्नियां, वे लोग कभी भी प्रभु के पास नहीं आए। ससुर के कारण बहू लोग भी बच गए।
बाइबल में उनके बहुओं का नाम नहीं है, परंतु बाइबल क्या बताता है? 8 लोग बचे, यानी नूह 1, उसकी पत्नी 2, उसके बच्चे 3 और उनकी बहू 3, 8 लोग। हालेलुया, हालेलुया। आपके द्वारा ऐसे कितने लोग बचेंगे जिनको आप जानते भी नहीं है। आपके द्वारा परमेश्वर कितनों को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। But the problem is the ark points. Is there a ark? Is there? The ark points to Jesus. This ark is pointing. ये आर्क हमें बता रहा है ये कौन है? ये यीशु। ये जहाज कौन है? ये जहाज कौन है? Amen. This ark points to Jesus. Amen. Hallelujah. ये आर्क हमें प्रोवाइड करता है परमेश्वर के अनुग्रह को। Amen. Hallelujah. The ark was sealed inside and out also. ये जो नौका है, ये जो जहाज है, बाहर से भी बंद है और अंदर से भी बंद है। बाहर से भी लोग, जब बारिश स्टार्ट हुआ, जब पानी ऐसे भरना स्टार्ट हुआ, तो लोग बोल रहे थे, नूह दरवाजा खोल, तू मेरा काका है। नूह खोल, तू मेरा दादा है। Amen. Hallelujah. आज जिन लोगों के पास आप घर में जा जाकर बोलते हैं, चाचे आप हमारे का टाइम नहीं, हमारे का समय है, तू क्रिश्चियन होएगा चीज, तू विदेशी होएगा चीज, तो विदेशी जैसा तो हम देखते नहीं, काला है उसे काला ही तो है, तो शेम्स तो नहीं हो रहा है। Amen. जिन लोगों को आप बहुत प्यार से बुला रहे हो, एक दिन वे रोएंगे, एक दिन वे तड़पेंगे। लेकिन यीशु जब इस कलीसिया को लेने आएगा, ये कलीसिया बाहर से भी बंद रहेगा और अंदर से भी बंद रहेगा। ये कलीसिया बाहर से, आज गेट खुला है, आज दरवाजा खुला है, आज बाहर से भी खुला है, अंदर से भी खुला है। एक समय, एक वक्त आएगा, बाहर से भी बंद होगा, अंदर से भी बंद होगा, क्योंकि बंद करने वाला खुदा है, तो इस दरवाजे से जिद्दत करेगा। आज मौका है, इस दरवाजे से ढुको, इस दरवाजे के अंदर रहो, क्योंकि ये दरवाजा एक दिन सील होने वाला है, ये दरवाजा एक दिन मोहर करने वाला है। Nobody will open. Hallelujah. There was only one ark provided. एक ही आर्क था, एक ही आर्क, एक ही जहाज, एक ही डोर। Amen. Hallelujah. प्रभु ने नूह को सिर्फ एक जहाज बनाने के लिए बोला था, 4 जहाज नहीं। Amen. Hallelujah. सिर्फ एक, और वो जो रास्ता था वो एक ही तरफ जा रहा है। यूहन्ना की पुस्तक इसी जहाज के बारे में बताती है। Somebody can read. कौन से बस वर्स है? यूहन्ना 14:6। The book of John chapter 14 verse 6। क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, किसने कहा? Jesus said, I am the way. Amen. I am the way. यीशु ने कहा, मैं ही बाहर बहुत सारे लोग है बोलते हैं जानी 100 रास्ता होता है, नहीं आ सकता है ना। बाहर बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम वर्का से जाओ, तुम पूर्णिमा का से जाओ, तुम रात्रि का से जाओ, तुम रामार का से जाओ, तुम सिद्धार्थ का से जाओ, सब पूरे 500 का से आ सकते। बाहर बहुत सारे लॉजिक है ना। तुम रामू के पास जाओ, साबू के पास जाओ, जोधू के पास जाओ, घनश्याम के पास जाओ, हाँ, इन सब के पास जाओ, ये सब मिलकर एक ही रास्ते पर आ रहा है। ना, ऐसा नहीं है।
एकदम ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा आई एम द वे। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ। हालेलुया। यीशु बोलছেন আমি শুধু পথ আছি। बाइबल में लिखा है नूह ने जब जहाज बनाया सिर्फ एक ही दरवाजा था, 10 दरवाजे नहीं थे, एक ही द्वार था, एक ही रास्ता है जिसके द्वारा आप जहाज में डूब सकते हो। यीशु ही सिर्फ मार्ग है, यीशु ही सिर्फ रास्ता है, सिर्फ यीशु है। 4-5 रास्ता नहीं है हमारे पास, 10-12 रास्ते नहीं है हमारे पास। हालेलुया। अगर कोई कहता है हम वहां से, हम यहाँ से, हम उधर से तुझे पकड़ लेंगे, एक दिन नहीं पकड़ पाएंगे हमें, क्योंकि दरवाजा यीशु बंद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 10 रास्ते नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं জানি তুই রহিমকে মানিস, আমি শ্যামকে মানি, ঠিক আছে, ও ঝন্টুকে মানে, ঠিক আছে, ও श्याम के माने, वो घनश्याम को मानता है। ये सब मिलकर एक दिन झोंटू के पास ही जाएगा। भूल है। ये वचन से हमें बात करना है। प्रभु यीशु ने कहा सिर्फ मैं ही मार्ग हूं। कहने लगा सिर्फ मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। सोचो अगर नूह के समय में 4-5 दरवाजे होते तो लोग उस दरवाजे से ढूंढने की कोशिश करते, परंतु नूह सिर्फ उस दरवाजे के सामने खड़ा है और बोल रहा है। वहां से लोग बोल रहे खोल हमारे लिए, खोल हमारे लिए दरवाजा खोल। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि पापुन स्वर्ग जाएगा कि नहीं, परंतु मैं जिस पापुन को ही उदाहरण लेता हूँ। मान लो पापुन अंदर है और बाहर से रूह बोल रहा है पापुन का दरवाजा खुले जाओ, पापुन का दरवाजा खुले जाओ। पापुन बोलेगा रूह हो सकता है तू गिटार बजाता था, मैं आपको पैड बजाता था, हो सकता है तू हम एक संग कचौड़ी खाते थे, एक हो सकता है हम एक संग खाना खाते थे, परंतु तेरा रास्ता अलग था, मेरा रास्ता सिर्फ यीशु था। और ये दरवाजा मैंने नहीं बंद किया है मेरे दोस्त, ये तो यीशु ने बंद किया। हो सकता है उस दरवाजे के बाहर आपकी पत्नी खड़ी होगी और आप अंदर होंगे। आपकी पत्नी बोलेगी मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा, ऐसा मत कर। शायद पति को बोलना पड़े पति ये मैंने नहीं बंद किया है, मैं तुझे बार बार बोलता था चल मेरे साथ चल, चल मेरे साथ चल, तू सुनती नहीं थी कभी। तू बोलती थी तुम इधर जाओ मैं वहां जाऊंगी और हम दोनों एक जगह मिलेंगे। आज देख, आज तेरे लिए दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, मैंने जिसका मार्ग लिया, मैंने जिसका रास्ता लिया, आज उसी ने वो दरवाजा बंद किया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं, और कोई नहीं। अगर आप यीशु को छोड़कर किसी और को मानते हैं, याद रखना एक दिन आपको ऐसे ही दरवाजा बंद मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही वो रास्ता हूं। आमेन। यीशु ने कहा मैं द्वार हूं। यीशु ने कहा आई एम द डोर। बाइबल बताती है यीशु बोलते आमी से दरवाजा। हालेलुया। बाहर लोग रो रहे थे, बाहर लोग तड़प रहे थे, बाहर लोग बोल रहे थे बार प्लीज प्लीज मेरे लिए एक बार दरवाजा खोल दो। आज चर्च का दरवाजा आपके लिए खुला है, आज कलीसिया का दरवाजा आपके लिए खुला है, परंतु आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने परिवार में बैठे हैं, आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, आप भूल ही गए हैं कि एक दिन खुदा का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा। एक दिन परमेश्वर का द्वार आपके लिए बंद हो जाएगा।
समय है अपने आप को सीरियस करने का, अभी वो समय है। परंतु यीशु ने रिप्लाई किया। आज यीशु हम सबको एक रिप्लाई करना चाहते हैं। यूहन्ना की पुस्तक के अनुसार उसका 6:37 है, The book of John chapter 6:37, John 6:37, यीशु हमें रिप्लाई करते हैं आज के लिए प्रभु हमें रिप्लाई कर सकते हैं। रीड quickly 6:37, 6:37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন সে সমস্ত আমারই কাছে আসিবে এবং যে আমার কাছে আসিবে তাহাকে আমি কোনো মতে বাহিরে ফেলিয়া দিব না। আমেন। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, सब मेरे पास आएगा। परंतु आंसर, यीशु का आंसर यहाँ है, और जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। आमेन। मैं उसे कभी इस आग से बाहर नहीं करूंगा, मैं कभी भी उसे कलीसिया से बाहर नहीं करूंगा। आमेन। मैं तुम्हें जीवन से अलग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं जीवन हूँ। आमेन। मैं जीवन हूँ। आज आपके पास समय है, आज आपके पास वक्त है मेरे प्रियो। ऐसे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में मर जा रहे हैं, शायद पता नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हॉस्पिटल में जो सोचते होंगे कि काश हम यीशु को ग्रहण कर ले, काश हम अपने पास्टर की बात सुन ले, काश हम कलीसिया में सही तरह से आपको। आज आपके पास समय है अपने जीवन को सीरियस करने का। आज आपके पास समय है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने का। शादी ब्याह होते रहेंगे, बर्थडे पार्टी होते रहेंगे, दोस्त बनते रहेंगे, रिश्तेदार बनते रहेंगे, नौकरियां आती रहेंगी, नौकरियां जाती रहेंगी, बिजनेस स्टैब्लिश होगा, बिजनेस वैनिश भी हो जाएगा, तो खुदा रहेगा, परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर ही रहेगा, परमेश्वर ही सिर्फ रहेगा, कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस जल प्रलय से पूरी धरती को खत्म कर दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि प्रभु इस बार पानी से नहीं परंतु आग से नष्ट करेगा। बिली ग्राहम ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहा था। बिली ग्राहम ने कहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह अगर इस संसार में, प्रेजेंट वर्ल्ड में, जब वो बहुत उम्र हो गया था उनका, कुछ साल पहले उनका मौत हो गया, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लोगों को नष्ट नहीं करेंगे, आपने सुना, अगर प्रभु इस संसार के लोगों को नष्ट नहीं करेंगे तो प्रभु कहां परमेश्वर ने आग की बारिश बरसाई थी? सदोम और परमेश्वर ने सदोम और गोमोरा को आग से। बिली ग्राहम कहते हैं कि अगर प्रभु अभी के लोगों को अगर नष्ट नहीं करेगा तो प्रभु पछताएगा सदोम और गोमोरा को नष्ट करके। यानी इतना पाप आज हमारे संसार में है, यानी सदोम और गोमोरा से भी ज्यादा पाप अभी के संसार में पाया जाता है। हालेलुया। अभी के जीवन में पाया जाता है। एक लड़का लड़की बन जाता है, एक लड़की लड़का बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। शायद उस समय ऐसा नहीं था, परंतु अभी ऐसा हो रहा है। आमेन। परमेश्वर की सृष्टि को हम बर्बाद कर रहे हैं। आमेन। परमेश्वर की सृष्टि को हम बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, बहुत सारे लड़के लड़के से व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे देश में लोग जानवरों से शादी कर रहे हैं। आमेन।
गमोरा से ज्यादा पाप अभी के युग में। अगर प्रभु अभी के युग को नष्ट नहीं करेगा, he will regret, वो पछताएगा मैंने सदोम और गमोरा को क्यों नष्ट किया। इतना पाप है अभी के युग में, इतना गुनाह है। कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को, कैसे बचाएंगे अपने पीढ़ी को, कैसे बचाएंगे अपने लोगों को। उस समय इंटरनेट नहीं था, अभी फास्ट और ज्यादा फास्ट हो रहा है। 2G, 3G, 4G, 5G, पता नहीं कितने दूर तक ये जाएगा हमें। आज तो बोलने से हमें सब कुछ मिल जाता है, सब सारे स्क्रीन में दिखते हैं, कोई भी चीज खोजो वो मिल जाती है। मेरे प्रियो, आप कैसे बचाओगे अपने बच्चों को, आप कैसे बचाओगे अपने जनरेशन को, आप किस तरह से अपने बच्चों को संभालोगे। सिर्फ इस जहाज के द्वारा, सिर्फ कलीसिया ही है जो हमें बचा सकती है, सिर्फ परमेश्वर का घर है जो इस पूरे अंधकार के दुनिया से हमें बचा सकता है, सिर्फ परमेश्वर का वो भवन है जिसके द्वारा आज हम बच सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने सारे परिवार को कलीसिया का आदर दिलवाओ, कलीसिया में रहना सिखाएं, खाना पीना कम करके घर में कलीसिया जाना होगा, चर्च जाना होगा। तुम्हारे संग मेरा कोई रिश्ता नहीं है जब तक तुम मेरे संग परमेश्वर के घर नहीं जाओगे। We to be very strict in this area. एक दिन यही लोग आपका धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे नबी शराबी हैं और हम उसे और भी पैसा देते, जाओ शराब पियो, मैं चल जा रही हूँ। मेरी तो मेरी स्ट्रेट। एक दिन आपको बहुत रोना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना होगा। मेरी तो मेरी स्ट्रेट। लेकिन शायद नूह के 3 बच्चों ने विश्वास नहीं किया होगा। आमेन। कहीं भी नहीं लिखा है बाइबल में कि सेम हाम यहवे और उनकी तीनों बहुओं ने, है ना, बहू हम जानते हैं बहू कैसे होते हैं, है ना, बहू सास के प्रति कैसे होते हैं हम जानते हैं। अगर सास उत्तर है तो बहू पश्चिम है, ठीक है। और अगर सास ऊपर है तो बहू, क्या आपको लगता है सेम हम यहवे की तीनों बहुएं राजी हो गई होंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाइबल बताते हैं चारों तरफ सिर्फ पाप था। सिर्फ बाइबल बताते हैं नूह सिर्फ परमेश्वर के संग चलता था, तीनों बच्चे नहीं। परंतु तीनों बच्चों को अनुशासित किसने किया? नूह ने। क्योंकि नूह को मालूम था अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं अगर थोड़ा सा कड़ा नहीं बनूंगा मेरे बहुएं मर जाएंगी, मैं थोड़ा कड़ा नहीं होऊंगा मेरी पत्नी मर जाएगी। आमेन, हालेलुया। कभी-कभी हमें स्ट्रिक्ट होना है परमेश्वर के घर के लिए, कभी-कभी हमें कड़ा बनना है परमेश्वर के घर के लिए, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वो हम भविष्य के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। आप देखो नूह के डिसीजन के कारण पतरस अपने प्रचार में बोलता है 8 लोगों को खुदा ने बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन बाइबल में लिखा है, एक दिन आपकी कहानियां स्वर्ग में बताई जाएंगी। हालेलुया। आपके डिसीजन, आपके फैसले, आप जब स्वर्ग जाएंगे तो मूसा बोलेगा, वाह, वेरी गुड हरीश, तू बहुत स्ट्रिक्ट था, वेरी गुड एस्टर, बहुत तू मजबूत थी, वेरी गुड शोभा, तू बहुत मजबूत थी। एलिया बोलेगा, विश्वनाथ তুমি কিন্তু খুব মজবুত ছিলে, আমি ভাবতাম আমি শুধু আছি, তুমিও ছিলে। अरे वहाँ बाइबल के हीरोज हमसे बात करेंगे, बाइबल के हीरोज हमसे बोलेंगे, आप विश्वास था तुम्हारा, सब तुम्हारे पीछे पड़े थे और तुम खड़ा था अपने उस पूरे पाले में, आज तेरे कारण आज वे भी इस आग में बैठे हुए हैं, इस नौके में बैठे हुए हैं। आपके संस्कार की है हालेलुया, हालेलुया।
in your calling. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. 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 21 days we are fasting. Amen. Hallelujah. पता नहीं कितने लोगों को ब्रेकफास्ट याद आता है, मुझे तो यहाँ भी नहीं आता है, मैं कभी ब्रेकफास्ट भी खाता था। Amen. It's God. Amen. Love your heart. Love your church. अपने कलीसिया को प्यार करें। Amen. चाहे आपका अवस्था जैसा भी हो, but your church is going to take you to heaven.